Architecture, we have studied lot of things till today that you might have forgot because it is long back. We have studied different types of instructions, different types of modes, indirect mode, direct mode. Then we have studied immediate mode or different types of addressing, or we have studied about the what is effective address. Effective address is the address at which address we will get the our operand finally. If the address is provided in the instruction, it is having the operand, then it is called effective address. But then if it is not having the operand and it is also having the address, and at that address we will get the operand, then uh, it is called not effective. It is not effective address, it is indirect address. Okay, now from today onwards we will start with the implementation of few hardwares. So let us understand the difference between embedded system and computer, general purpose computer first. So embedded systems are those systems which are having very specific task. अब फॉर एग्जांपल आप देखिए, आपके पास लेट से मोबाइल फ़ोन है. अब मोबाइल फ़ोन तो फिर भी जनरल पर्पज़ हो गया, लेकिन मोबाइल फ़ोन से कनेक्टेड आपके पास में स्मार्ट वॉच है. स्मार्ट वॉच के अंदर भी सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम है. बट देन फ्रॉम दैट वॉच you cannot do all the tasks which you can do from your laptops. For example, you cannot run C programs, or probably you cannot run Python programs from that watch, which you can run from computer. I'm just giving an example. There might be some watch which can run the C programs or Python programs, but you cannot control, for example, you cannot control some server through your watch, till now at least. Okay, or you can take an example of washing machine or micro oven. In washing machine you have fixed menu. You can set the timer, you can stop the machine, you can set the machine on different modes, like woolen clothes or uh, more soiled clothes and so on. Similarly, in micro oven you have different menus. For example, you can increase 10 second, decrease 10 second. You can set the micro oven at grill mode or at temperature mode. You can increase the temperature, decrease the temperature. So that type of menu are there in those machines, and which are fixed. You cannot change those menu, or you cannot add the features in it. That is fixed. And that systems are also having the this thing called operating system, and hardware is designed for that. So those systems which are generally made for some specific purpose, or they have less computation power, that are called embedded systems. Okay, so I'm just giving you the points here, but then all the notes will be provided to you. Don't worry about the notes. Okay, so if you are not writing the notes, then also it's okay, because I'm giving you the notes. Here I'm just giving you the simple scenario so that you understand. So what is embedded system? Embedded system have less computation. It is also have fixed menu. Okay, in general purpose computer, we have more computation. मतलब अब लेट्स से एम्बेडेड सिस्टम की अगर हम बात करें, तो हो सकता है उसके अंदर जो सीपीयू साइकिल हो वो 1 मेगाहर्ट्ज हो, या 10 मेगाहर्ट्ज, 100 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रही हो. जनरल पर्पस कंप्यूटर में आपके पास जो क्लॉक साइकिल है वो 1 गीगाहर्ट्ज, 2 गीगाहर्ट्ज और प्रोबेबली 3.2 गीगाहर्ट्ज जो सीपीयू की स्पीड होती है वो गीगाहर्ट्ज में है. ठीक है, तो मोर कंप्यूटेशन पावर है. यहाँ पे वेरिएबल मेन्यू है, और यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर नीड. अब आपको अगर सी प्रोग्राम किसी काम के लिए लिखना है तो आप प्रोग्राम लिख सकते हो, आउटपुट उसी हिसाब से आएगा. ऐसा नहीं है कि यू कैन ओनली ऐड सब्ट्रैक्ट और only do multiplication and division. You can do multiple various tasks by combining all those instructions also. So that is general purpose computer. Okay,
Now you can take the example also. So what is the example? Let's say washing machine, and here we have, let's say, our laptops at home. So these are the examples of embedded system and general purpose system. Now embedded system is not in our course, but then if we know what is general purpose computer, then we can create any type of computer, because embedded system is a subset of general purpose computer only. ये देखो, ये जो है वो छोटा है, ये जो है वो आपका पास एक सुपर सेट हो गया एक तरह से. सो इफ यू कैन डिजाइन दिस, देन दिस डिजाइन इज easy. So what we will do is we will learn few components, few elements which are required to implement general purpose computer, and then after learning those elements, we will try to implement the hardware of it. So let's try to understand components or parts. Okay, components or parts of general purpose computer. So I am reminding you again, so do not write these short forms. I am just writing here just to make you understand, otherwise notes will be available to you. So first of all, in our computer we need memory. Okay, why? Because we have to store files, we have to store data, we have to store instructions, we have to store operands, opcode, and various other things. So memory is required, and we need ALU. Why? Arithmetic logic unit is required, because without arithmetic logic unit we will not be able to compute things. For computation purpose we need ALU. So what is the operations which we can do using ALU? If we consider a small ALU also, then we have operations like add, subtract, multiply, divide, and or XOR. Okay, so these type of operators are available in ALU, but the problem is it is fast. It is fast. Why it is fast? Because ALU works, let's say, at a speed of 3 gigahertz. Okay, it works on a speed of 3 gigahertz on a clock cycle, and this is slow. We have already seen that in computer organization also. For in computer organization we have seen the slow memory is RAM and fast memory is cache. So to transfer the data from memory to ALU, we have used cache in between to make the synchronization in between. But now see, this memory is slow and this is fast. If we are getting data at slow rate, then we have to become slow so that we accept all the data coming from the memory. Understand this. अगर हमारे पास लेट से कहीं से डेटा कहीं से कुछ पानी आ रहा है, लेट से एक पाइप में, और वो बहुत स्लो रेट से आ रहा है, इवन इफ आवर कंटेनर इज वेरी बिग विच कैन एक्सेप्ट लॉट ऑफ वाटर, then also it has to wait for lot of time to get it filled. ओके, मैं बता रहा हूँ आपको. लेट से हमारे पास एक पाइप है, पाइप में से पानी आ रहा है जो कि बहुत स्लो स्पीड से आ रहा है. हमारा कंटेनर है वो बहुत बड़ा है जो कि हमारे पानी को बहुत तेज स्पीड से आने पे भी एक्सेप्ट कर सकता है. तो क्या होगा, हमें फिर भी बहुत देर वेट करना पड़ेगा उस कंटेनर को फिल होने में. लेकिन अगर डेटा हमारे पास, जैसे पानी हमारे लिए डेटा हो गया यहाँ पे, अगर वो बहुत तेजी से आ रहा होता तो कंटेनर हमारा फास्ट फिल हो जाता. सो हियर ALU हैज टू बिकम स्लो इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट द मेमोरी. सो व्हाट इज द नीड ऑफ दिस 3 gigahertz? वी कैन यूज 2 or 1 or even in megahertz also. So we use some devices, some hardwares for fulfill this gap. And what is that? We have registers. So in computer organization we have studied cache and memory. In computer architecture we will focus on registers, we will not focus on cache now. So register is the device which is used to fulfill the gap between the speed of memory and ALU, because it was slower as compared to ALU. So it will fulfill the gap of speed. Okay,
So that is one thing. And now this register is having predetermined few things which we can do without going to ALU. Let's say we want to increment the value of register. Why we want to increment the value of register? For example, I have something called a command as INCA. This command was zero operand command. We have already seen it, this before. If you have forgot what are all instructions and what are the types of instructions, then please watch previous videos, or you can refer your notes. So this is what increment accumulator. Okay, so if we want to increment the accumulator, this is a one kind of an instruction, then probably we need ALU for that, because it is like AC is AC plus 1. We are adding 1 to the accumulator data. So can we do it without using ALU? बिकॉज अगर हम बिना ALU के इसको कर सकें तो होगा ये कि हम कुछ साइकिल्स को सेव कर लेंगे और उन साइकिल को किसी और काम में यूज कर सकते हैं. सो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे INC इंक्रीमेंट नाम का एक लाइन होती है रजिस्टर में, जिसमें अगर हम अपना सिग्नल पास करें तो रजिस्टर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी. ठीक है. और दूसरा रीजन क्या हो सकता है इंक्रीमेंट करने का? जैसे आपको पता है एक रजिस्टर होता है प्रोग्राम काउंटर. प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. सो अगर हम प्रोग्राम काउंटर को पुरानी वाली इंस्ट्रक्शन को फेच करने के बाद इंक्रीमेंट करना चाहते हैं और हर बार ALU पे जाएंगे तो बहुत सारी साइकिल वेस्ट हो जाएंगी. इसीलिए हम क्या करेंगे, प्रोग्राम काउंटर वाले अपने रजिस्टर में एक अलग से लाइन रखेंगे जिसके अंदर होगा INC, और सिर्फ इसको सिग्नल देने से प्रोग्राम काउंटर इंक्रीज हो जाएगा. Later we will implement this hardware also and you will get to know it how this increment works. But if you have watched my videos of digital, then I will say that there we have used just by giving a clock our value of the register or counter was increased. By using counters we can increment the value of this register. See, हमारे पास एक्चुअली में रजिस्टर कैसे बनते हैं? रजिस्टर्स आर नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स और कॉम्बिनेशन ऑफ काउंटर्स. ओके, रजिस्टर्स आर नथिंग बट फ्लिप फ्लॉप्स एट द एंड. जैसे अगर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, 1 बिट स्टोर करता है. रजिस्टर क्या होगा, लेट्स से 16 बिट रजिस्टर है तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 16 फ्लिप फ्लॉप्स, एंड देन वी कैन design them in such a fashion that it can act as a counter also. Okay, so that is register. And we can have one more line called load. Why? Because let's say you want to assign R1 with some data 10. So you want to assign this data to R1. For that you have to have one line called load. जो भी data आ रहा हो वो इसके अंदर हम load कर सकें. And we have one more line called clear. What clear means? So what we do is nothing but R1 can be loaded with 0. Okay, so clear का मतलब क्या हुआ? clear में जब भी हम सिग्नल देंगे तो register will be loaded with 0. So that means everything will be removed from the register. So that is clear. Okay. And for all these tasks we don't need ALU. No ALU is needed. That's all we wanted to make, because if we don't need ALU, then we have saved few cycles. And see, generally होता ये है कि हमारे पास जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सीक्वेंस में चलती हैं, जैसे I1, I2, I3, I4 until some ब्रांच कंडीशन कम. ब्रांच कंडीशन जब तक नहीं आती है तब तक क्या होता है, वो सीक्वेंस में चलेंगी. ब्रांच कंडीशन पे आने के बाद वो ब्रांच करेंगी, फिर वो ब्रांच वाली इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस में चलेंगी, और फिर अगर कोई और ब्रांच आई तो वो ब्रांच वाली इंस्ट्रक्शन चलेगी और फिर सीक्वेंस में चलेगी. देन इट हैज़ टू रिटर्न, देन इट विल रन अगेन, एंड देन इट हैज़ टू रिटर्न बैक. सो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपने ध्यान दिया हो तो सिर्फ यहाँ पे हमने ब्रांच किया, यहाँ पे हमने ब्रांच, यहाँ से फिर हमने इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस में चलाई. देखो ये सीक्वेंस में ज़्यादा चल रही है.
सीक्वेंस में ये रेड पार्ट जो है पूरा का पूरा सीक्वेंस में है। और सिर्फ ब्रांच कहाँ पे किया, ब्रांच हमने किया है एक ये प्लेस था और एक ये प्लेस था, या फिर यहाँ से हमने रिटर्न बैक किया तो हम इसको भी लेट से मान लेते हैं कि ये ब्रांच हो गया वापस। बट देन अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव रन द इंस्ट्रक्शंस इन सीक्वेंस। सो every instruction is a combination और लेट से एक इंस्ट्रक्शन की मैं बात करूं तो एक इंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं। जैसे पहले हम इंस्ट्रक्शन को फेच करना है, फेच करने के बाद इंस्ट्रक्शन को हमें डिकोड करना है और उसके बाद हमें इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। फेच करने का मतलब क्या हुआ, देखो हमने आपको बताया कि हमारे पास जो ये मेमोरी है, मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शंस और डेटा स्टोर होता है। डेटा और इंस्ट्रक्शंस कहाँ होंगे, मेमोरी के अंदर। जैसे ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये अभी कहाँ पे होगी, मेमोरी के अंदर। तो हमें पहले इसको मेमोरी में से उठा के फेच करना पड़ेगा। और फेच कहाँ करेंगे, रहेगी तो मेमोरी में ही, लेकिन फेच करने का मतलब ये हुआ कि राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू रन दिस इंस्ट्रक्शन। फेच करने के बाद हम इसको डिकोड करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन इज दिस, व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, देन व्हाट ऑपरेशन इट वांट्स टू डू। काइंड ऑफ मतलब जैसे कि इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, इमीडिएट मोड, दैट इज मोड। देन वी हैव टू डिकोड व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। फिर उसके बाद on the basis of what type of instruction it is, then we will execute it. And how the decoding is done, by using decoder. And if you know that we have studied decoder in digital logic, okay, so decoder is nothing but 2 to the power n cross 2 to the power n device, n input 2 to the power n output. By using this we can decode our instruction and then it can be executed by the using of ALU. So without fetching we cannot decode, without decoding we cannot execute. See, it is a sequence. जब तक हमारे पास इंस्ट्रक्शन ही नहीं होगी कि कौन सी इंस्ट्रक्शन हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं आउट ऑफ मैनी, वी कैन नॉट डिकोड इट। डिकोड क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंस्ट्रक्शन ही नहीं है, कौन सी करें। फिर डिकोड करने से पहले हमें फेच करना पड़ेगा, और जब हम डिकोड कर लेंगे उसके बाद ही हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि कौन सा ऑपरेशन करना है तब तक हम उसको एग्जीक्यूट कैसे करें। ALU को तो ये पता है कि मुझे ये बताओ प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, लेकिन करना क्या है वो तो उसको बताना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें डिकोडिंग चाहिए। सो दिस इज अ सीक्वेंस इन विच वी हैव टू रन आवर इंस्ट्रक्शन, दीज आर माइक्रो ऑपरेशन। सो फॉर दैट वी नीड टाइमिंग सिग्नल, टाइमिंग signal. Why? Because this fetch has to be done at t0, this decoding has to be done at let's say t1, execution has to be done at t2. So this is timing signal. हर एक चीज एक पर्टिकुलर टाइम पे होनी चाहिए, अगर वो टाइम पे नहीं होगी तो हमारी सीक्वेंस ब्रेक हो जाएगी। लेट्स से इसको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बाय यूजिंग our sequence counter we can implement this. See, sequence counter को यूज करके हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखो सीक्वेंस काउंटर लेट से हमारा 3 बिट्स का है, 3 बिट्स का सीक्वेंस काउंटर है। सीक्वेंस काउंटर विल जनरेट ऑल द बिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल 7। ये 0 है, ये 1 है और ये 7 है, तो ये सारे नंबर्स जनरेट करेगा फॉर एवरी क्लॉक। अब इसको मैं बोल देता हूं T0, इसको मैं बोल देता हूं T1, इसको मैं बोल देता हूं T7। यानी कि T0 में हमें फेच करना है, T1 में हमें डिकोड करना है, T7 में लेट से हमें कुछ और काम करना है। अब यहां पे फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट तरह की इंस्ट्रक्शन है। जैसे I1 के अंदर 3 माइक्रो ऑपरेशन है, 3 माइक्रो ऑपरेशन। I2 के अंदर 5 माइक्रो ऑपरेशन है। एट मैक्स वी कैन हैव लेट्स से 7 माइक्रो ऑपरेशन। आई एम नॉट सेइंग कि 7 इज द हाईएस्ट नंबर, बट लेट्स से एग्जांपल 7 माइक्रो ऑपरेशन कैन बी हाईएस्ट। अगर इससे ज़्यादा चाहिए होंगी तो हमें 3 बिट की जगह 4 बिट का माइक्रो सीक्वेंस काउंटर चाहिए, जो कि 16 वैल्यूज जनरेट कर सकता है। अब T2 पे जाके हमने एग्जीक्यूट कर दिया।
अब एग्जीक्यूट होने के बाद हमारी इंस्ट्रक्शन क्या हो गई, लेट्स से फिनिश। तो हम I2 पे गए, I2 फिर से फेच से स्टार्ट होगा, तो हम क्या करेंगे T2 पे हम इसको क्या कर देंगे, रीसेट। और रीसेट होने के बाद ये वापस T0 से स्टार्ट हो जाएगा, यहां से ये फिर वापस T0, T1, T2 और उसके बाद T3 है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में लेट्स से 4 माइक्रो ऑपरेशन है, तो ये यहां तक कंप्लीट हो गए, वापस रीसेट हो जाएगा और फिर से T0 पे चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा सीक्वेंस काउंटर कैन बी वर्कड एज अ टाइमिंग सिग्नल। सो नीड ऑफ टाइमिंग सिग्नल इज अराइव्ड एंड टाइमिंग सिग्नल कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय यूजिंग सीक्वेंस काउंटर। ओके, and now to manage signal, to which signal to be sent, we need control signal। देखो अब टाइमिंग सिग्नल की जरूरत क्यों पड़ी थी, ये टाइमिंग सिग्नल की, बिकॉज हमें ये सारे एक सीक्वेंस में करने हैं और उसके लिए हमें ये सारे काम एक पर्टिकुलर टाइम पे होने चाहिए, उसके लिए हमें टाइमिंग सिग्नल चाहिए। अब ये टाइमिंग सिग्नल जनरेट हो उसके लिए ये सीक्वेंस काउंटर चाहिए, और सीक्वेंस काउंटर को रन करने के लिए हमें क्लॉक चाहिए। दैट क्लॉक और मे बी सम अदर थिंग्स is required, and that is working as control signal which will control it all. And together timing signal plus control signal in total is called control unit। ये control unit कहलाती है, जिसका काम क्या है, कंट्रोल करने का। ठीक है, सो टू मैनेज विच सिग्नल टू सेंड व्हेन एंड कंट्रोल एवरी फ्लो ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन वी रिक्वायर कंट्रोल सिग्नल। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। लेट से हमारे पास में अब क्या हो गया, मेमोरी 1 यूनिट हो गई। लेट से इसको मैंने बोला 1 यूनिट। फिर हमारे पास में दूसरी यूनिट क्या हो गई, लेट से रजिस्टर्स हो गए, और रजिस्टर भी एक नहीं है, बहुत सारे हैं। फिर हमारे पास में ALU 1 यूनिट हो गई। फिर हमारे पास में लेट से और कोई यूनिट मान सकते हैं, लेट से कैश भी मान लेते हैं। तो हमारे पास में ये सारी यूनिट है। अब इनके बीच में कम्युनिकेशन भी तो कराना है। कम्युनिकेशन कैसे होगा, बाय यूजिंग बस, डेटा ट्रेवल थ्रू बस। तो लेट से हमने इसको इस तरह से बस में कनेक्ट कर दिया विद ईच अदर। दिस इज अ मैश टेक्नोलॉजी। ठीक है, हमने इनको इस तरह से कनेक्ट कर दिया, जैसे कि memory can talk with register and at the same time cache can talk with ALU, or if registers are talking with ALU and then memory can talk with cache because the lines are different, so no problem। but let's say अभी हमारे पास में केवल 4 यूनिट है, so 4C2 that is 6 connections are required, 6 connections are required। बट अगर मैं एक रजिस्टर की जगह 16 रजिस्टर्स ले लूं, तो हमारे पास 16 तो ये हो गए, 1 ये 19 यूनिट्स, और लेट से एक और कोई यूनिट है तो 20C2 probably 190 equivalent to 190 connections are required, and these 190 connections are too many, बहुत ज्यादा हो गए, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इसको हटाने के लिए हमारे पास एक तरीका क्या है, लेट्स से व्हाट वी कैन डू इज वी कैन हैव वन कॉमन बस। लेट्स से दिस इज वन कॉमन बस एंड दिस कॉमन बस इज कनेक्टेड विद ऑल द यूनिट्स। लेट्स से ये हमारे पास ALU है, ये हमारे पास रजिस्टर हैं, ये हमारे पास मेमोरी है एंड सो ऑन, ऑल द यूनिट्स आर कनेक्टेड विद दिस कॉमन बस। अब जिसको भी कम्युनिकेट करना है वो इस बस पे डेटा पुट कर देगा। लेट्स से ALU वांट्स टू ट्रांसफर द आउटपुट टू मेमोरी, तो ये यहां से डेटा डालेगा और मेमोरी में ये डेटा चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लेट्स से रजिस्टर वांट्स टू पुट सम डेटा एंड गिव टू ALU, देन इट कैन गो इनटू दिस कॉमन बस एंड ट्रांसफर द डेटा। द प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ कॉमन थिंग वी कैन हैव clashing। Let's say जब ALU is transferring the data to memory, then this register cannot transfer the data to ALU because this common bus can contain data at max one value can have been put onto this common bus, otherwise clash होके data corrupt हो जाएगा।
ठीक है, तो इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, ये कंट्रोल यूनिट, ये कंट्रोल यूनिट जो कि कंट्रोल करेगी विच यूनिट वांट्स टू पुट द डेटा ऑन द बस एंड विच विल बी एक्टिंग एज अ रिसीवर। तो कभी ALU क्या होगा, कभी ये रिसीवर होगा जब इसको डेटा रिसीव करना है, कभी ये सेंडर होगा जब इसको डेटा आउटपुट करना है, रिजल्ट जनरेट हो गया और इसको वापस रजिस्टर में या मेमोरी में डेटा डालना है, तो ये रिसीवर और सेंडर की तरह काम कर सकता है। ऐसे ही रजिस्टर भी, ऐसी मेमोरी भी, रिसीवर और सेंडर कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल यूनिट का काम आता है विच एक्ट एज अ कंट्रोलर, कि कौन सी यूनिट सेंडर है, कौन सी यूनिट रिसीवर है, और बाकी सारी यूनिट शांति से बैठी रहें और कोई काम ना करें, बिकॉज डेटा करप्ट हो सकता है। वी विल लुक द डिटेल्ड हार्डवेयर डिजाइन ऑफ दिस लेटर ऑन। मैं आपको पूरा का पूरा हार्डवेयर डिजाइन बताऊंगा इसका एक दो लेक्चर के बाद, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या क्या चीज चाहिए अभी तक हमने देखी, हमें चाहिए मेमोरी, हमें चाहिए ALU, हमें चाहिए रजिस्टर्स, हमें चाहिए रजिस्टर के अलावा टाइमिंग सिग्नल्स, हमें चाहिए कंट्रोल सिग्नल्स, और इन दोनों को कंबाइन करके हम बोल रहे हैं कंट्रोल यूनिट। और कम्युनिकेशन के लिए हमें चाहिए बसेस, ये कम्युनिकेशन के लिए, अदरवाइज इनके बीच में कम्युनिकेशन होना इम्पॉसिबल है। तो इतनी सारी चीज़ें तो अभी हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, इनके हमें अगर कोई जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाना है तो ये सब चीज़ें तो हमें चाहिए। फिर नेक्स्ट हमें चाहिए कुछ फ्लैग्स। वाई फ्लैग्स आर नीडेड, बिकॉज व्हेन कंट्रोल सिग्नल हैज टू बी जनरेटेड फॉर मेकिंग सम डिसीजन, तो हमें उसके लिए फ्लैग्स चाहिए। इफ फ्लैग इज 0 देन वी हैव टू डू दिस, अदरवाइज वी हैव टू डू दिस। So for that purpose we need flags, okay, to make decision, we need flags। जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, you can consider them as a review notes। आप अगर मुझसे पूछना चाहो कि रिव्यू नोट्स कैसे बनाने हैं, तो वो रिव्यू नोट्स बना रहा हूँ मैं यहाँ पे बैठ के एक तरह से, क्योंकि थ्योरी के तो नोट्स मैं आपको एक डिटेल में दूंगा जिसमें बहुत सारी थ्योरी लिखी होगी। अगर आपको उनको रिवाइज करना है तो आई थिंक these all elements are required to implement a general purpose computer। memory is required, ALU is required, why register is required, because it is slow and it is fast, timing signal is required because each and every instruction need to be generated to be executed at a particular time। देखो कैसे रिवाइज कर रहा हूँ मैं, ये एक ट्रिक है किसी भी सब्जेक्ट को रिवाइज करने की। तो इस तरह से आप अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द elements required for the implementation of a general purpose computer। in next video I will tell you how to implement the bus first, and then we will see the implementation of other things।